Hey everybody, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Life, leaving no child behind. बच्चे लोग last class में we started diversity, right? And we studied lot many definitions and etc about diversity, right? कुछ terminologies के बारे में हम लोगों ने study किया था, which are again very important. So बच्चों please do stick to your lectures. I'm very strict about it. है ना, तभी जाके जो है आगे के सेशंस आप लोग को समझ में आएंगे. Getting my point? All right. So anyways, let's talk a little bit about the platform of Talking Textbooks again, of course, because we have lot many newbies here every day, isn't it? Right, guys? Most welcome again. So the platform of Talking Textbooks is getting you guys prepared for your school examinations, level 6th to 10th, then for your Olympiads, 6th, 7th and 8th, and of course some really good examinations जैसे कि NTSC, NSC, JS and PRMO. So many congratulations already for to everybody who's preparing for them, right? है ना, और बाकी की बातें हम आगे करते हैं. So this is the team which is getting you prepared for your journey throughout, right? So obviously you might be knowing these faces. Then a little bit about me, of course, who's teaching you biology, isn't it, right? Then yes, this is the Telegram handle. बच्चों यहाँ पे what you need to do is that if you want to know what exactly is in the material of Talking Textbooks for you guys, what we guys are offering for you, alright, so what you need to do is simply visit the Telegram channel, the official handle, Telegram handle of Talking Textbooks, right? And there you can, once you subscribe to the channel, you will be getting these links as you can see them here, right? And आफ्टर दैट उसके बाद आपको जो भी मटेरियल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का उसकी थोड़ी सी स्नीक पिक मिल जाती है, राइट? है ना. एंड उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो अबाउट दिस मटेरियल फर्दर, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट विजिट www.talkingtextbooks.in and then you will find your appropriate package there. All right, of course the material is absolutely amazing, so you can just go and check it out once. And also जो भी आपके पैकेज आपको suitable लगते हैं, you can go for it. All the payment methods are provided to you, all right, so that you know कोई inconvenience आपको ना हो. And then of course comes the discount वाला important feature, and that is my discount code, that is GS Live. So if you're applying GS Live, then you are getting 30% instant discount as well. All right, तो चलो moving ahead. So बच्चों go ahead, Telegram से आप जाओगे website पे and then make the payment and take the opportunity with you, right? And now let us just begin with the cardinal promise. चलो जी, let's go. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, right? आई होप सब लोगों ने बहुत मन से कर लिया होगा. नाउ लेट अस बिगिन बच्चे लोग. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस वगैरह डिस्कशन किया था, राइट? हमें क्यों पढ़ने हैं इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होती हैं ये चीज़ें, है ना. सो वी मस्ट बी नोइंग हु ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड एक्सेट्रा. आज थोड़े से ज़्यादा लेवल पे हम बात करेंगे बच्चे लोग, ठीक है? एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज टेक डाउन दीज नोट्स वेरी सिंसियरली सिंस दे गोना हेल्प यू आउट. ऑल राइट बच्चों, जो मटेरियल में आपको थ्योरी प्रोवाइडेड है, इट वुड बी अ लिटिल बिट मोर ईजियर फॉर यू गाइज टू एनगल्फ एंड स्टडी इफ़ यू आर वेरी मच कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड. ऑल राइट, सो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, ठीक है ना? ओके, सो इधर अटेंशन दोगे प्रॉपरली. ये नोट्स का स्क्रीनशॉट इफ यू वांट देन यू कैन टेक, और एल्स इट विल बी मच मोर बेटर इफ यू टेक डाउन दीज नोट्स प्रॉपरली, है ना. हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड रहती हैं ब्रेन में. ऑलराइट, चलो लेट्स जस्ट बिगिन. एज यू कैन सी द टॉपिक इज द किंगडम सिस्टम्स. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाई शुड वी बी क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स, यू नो, इतने सारे ग्रुप्स में, किंगडम सिस्टम्स में ज़रूरत क्या आ गई इतना सारा क्लासिफिकेशन एंड ऑल करने की? भाई भत्तेरे लोग हैं, भत्तेरे जीवाणु हैं इस पूरी धरती पे, पृथ्वी पे, isn't it? So many in the variety. How would we be able to study them, isn't it? So we need to classify. So this is again a good theory question for you as well. What is the importance of classification, right? So पहला, classification helps us in classifying organisms into various groups so as to make it very easy for us to study
the different varieties of life forms, right? बच्चों, this is mostly a theoretical phenomena or you can say aspect है ये पूरा, so we don't need much of a discussion over it, so quickly write it down. पहला है भाई क्या importance है, it makes the study of the organisms easy, isn't it? So if we have classified them into groups, you know, based on certain characteristics, we studied about this all in the previous lecture, right? So that would be much more easier for us to study them, isn't it? So then types in identification of known and unknown species, obviously it helps in identification. It helps in identification. It helps, there's a slight error here. So please write down, helps, okay, in identification of known and unknown species, reveals the interrelationships between organisms, okay. So reveals the interrelationship between organisms if we are classifying them, all right. So we studied probably last time that अगर वो अलग अलग groups में classified हैं तो उनके बीच में again कुछ ऐसे characteristics होंगे, है ना, जो उनको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटररिलेट करते हैं. तो ये भी हमें किसकी वजह से पता चल पा रहा है बच्चे लोग, बिकॉज ऑफ दी क्लासिफिकेशन, इजंट इट? देन योर नेक्स्ट पॉइंट, to understand other branches of life sciences such as physiology, biochemistry, etc. Obviously हर किसी के बारे में हमें you know accurate information मिलता है, isn't it? Right? If you are classifying them, it is based on natural relationships, resemblances and differences, and provide information about phylogeny, that is evolution of a particular organism. Kindly note this point, kids. So if we look at that, so whenever we are classifying organisms, right, whenever we are doing what, we are classifying organisms, what are we doing is that we get to study about them, isn't it? अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है ओके ये प्रिमिटिव है, ये उसके बाद आया है, ये उसके बाद आया है, कैसे उनके अंदर अलग अलग चेंजेस से पता चल जाता है हमें, isn't it? There are lot many things which gets evolved with the time, isn't it? And that we all are very much well aware about. We study that in heredity and evolution, isn't it? कि किस तरीके से evolution हो रहा है. So we don't need to discuss this point much here, but of course हमें क्लासिफिकेशन से ये सारी चीज़ों का पता चलता है. Now classification and evolution, right? Let us see how are they interrelated. It is what is that process of gradual changes from simple to complex life forms with time. सबसे पहले हमने बच्चों इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था, isn't it? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जब हमने पढ़ा था, इवोल्यूशन में वी स्टडीड दैट हाउ फ्रॉम अ वेरी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म फ्रॉम द वाटर, isn't it? है ना, जिसको काफ़ी सारी हमने थ्योरीज देखी थी, राइट? इफ़ यू रिमेंबर दोज थिंग, इफ़ यू हैव मिस्ड आउट देन प्लीज डू वॉच दोज लेक्चर्स अगेन, ऑल राइट? सो फ्रॉम देम हाउ डिड दीज लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेटेड, सिंपल से कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आते गए, है ना? So the process of gradual changes from simple to complex life forms with time, है ना? Their classification will be closely related to their evolution. Obvious सी बात है, उनका classification जो है भाई हम लोग primitive को पहले जो है place करेंगे, right? है ना, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को प्लेस करते जाएंगे. सो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे जो कि पहले आए थे, एंड अकॉर्डिंगली द क्लासिफिकेशन वुड टेक प्लेस, राइट, फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स अकॉर्डिंगली, राइट, एंड दैट इज हाउ देयर इवोल्यूशन वुड बी रिलेटेड, isn't it? So please write down these points, both इन दोनों पॉइंट्स को लिख लो. एंड एवोल्यूशन एंड चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन इन मेनी लिविंग फॉर्म्स हैव मेड देयर सर्वाइवल इजी. बच्चों हमने देखा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी. अगेन एवरीथिंग हियर इज समवॉट टेकन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इजंट इट? सो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं and obviously our surroundings, as much as we get habituated to our environment, our surroundings, we get more evolved with the time, right? That is how we call ourselves as, isn't it? Being evolved with the time, and as we are evolving with the time, that is making our survival much more easier, isn't it? ठीक है? So write down these 3 points and then we'll be proceeding with organisms को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया इनिशियली. बहुत ईजी सा है, ठीक है, थ्योरी में इतना ज़्यादा कुछ फोकस करने की बात यहाँ पे है नहीं, बट इट इज दैट इन केस इफ इट आस्क्ड इन योर थ्योरी, राइट, देन यू शुड बी नोइंग. चलो जी, अब देखो अभी हमने बात किया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, राइट, दैट इज हाउ इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, इजंट इट? सो बच्चों सिमिलरली द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव और लोअर एंड एडवांस्ड और हायर और यंगर.
राइट डाउन प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स और उनको हायर ऑर्गेनिजम्स बोला, या फिर यंगर. वाई यंगर? बिकॉज दे हैव रिसेंटली इवॉल्व. राइट भाई, जितना ज़्यादा इवोल्यूशन होता जाएगा उसके क्लोज जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या है, यंगर हैं, यानी कि दे हैव इवॉल्व्ड रिसेंटली. राइट, सो दे वुड बी मच मोर डेवलप्ड, दे वुड बी मच मोर हायर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग. राइट, सो group of organisms, they have ancient body designs. They are your primitive or lower, and जिनका recent body design है, जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करती हूँ about the species, that is the human species, that is Homo sapiens sapiens. So we saw in again heredity and evolution में हमने देखा था that how a man basically कितने सारे forms है ना, पता नहीं Ramapithecus, Dryopithecus, पता नहीं कौन कौन से Pithecuses थे वहाँ पे, right, and then finally evolve होके क्या आया, Homo sapiens, right, which is the current species of humans, that is also more precisely called as your Homo sapiens sapiens, है ना, very much developed, right. So we have got the recent body design, so I hope you guys have done. Now let me just move it to the next slide. अब बच्चों यहाँ पे ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है facts, right. So these are certain very 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 important, I'd say very 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 महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे जानकारी. प्लीज इन पे ध्यान दें बिकॉज स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है इधर से, ठीक है. एज इट इज इसको लिख लो दैट टेक्सोनॉमी अगेन आप इससे देख रहे हो, दिस इज सम ब्रांच, राइट. टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स. व्हाट इज इट? It is a science dealing with identification, nomenclature and classification of organisms. So basically हम अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चों, that is what? That is your systematics or taxonomy, because here we are dealing with the identification, then the classification and then the nomenclature of the organisms, isn't it? So hence verified, right? Science dealing with what is taxonomy or systematics, science dealing with identification, nomenclature and classification of organisms. Now the second point, father of modern taxonomy, he is Carolus Linnaeus. Write down because this is again a straight question. Who's the father of modern taxonomy? इसलिए मैंने स्माइलिंग या स्माइलीज लगाए हैं. सी कैसे हंस हंस के बता रहे हैं आपको, है ना, ठीक है. तो बच्चों इनको एज इट इज हमें जो है याद रखना है क्योंकि अति आवश्यक जानकारी. अरे यार क्या हो रही है, ये देखो, ये तो मजाक हो गया. Oops. Let me go here. चलो तुम ज़रा पीछे आओ, जस्ट अ मिनट, ये तो हाईलाइटेड होना ही चाहिए. तो चलो जी, मूविंग अहेड, ठीक है. कैरलस लिनेयस, ठीक है ना बच्चों. सो द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कैरलस लिनेयस. देन इवोल्यूशन इन चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन इन मेनी लिविंग फॉर्म्स हैव मेड द सर्वाइवल इजी. वेरी अगेन सर्वाइवल इजी एंड द पॉइंट इज अगेन वेरी इजी फीजी, राइट. टर्म किसने दिया टेक्सोनॉमी? दैट वाज गिवन बाय एपी डे कंडोले. एपी डे कंडोले, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, प्लीज राइट इट डाउन. देन हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? दैट इज योर एरिस्टोटल. हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल. बच्चों ईच एंड एवरी पॉइंट हियर इज अनदर क्वेश्चन, सो प्लीज 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 डू पे अटेंशन एंड कीप ऑन राइटिंग दीज पॉइंट्स. ऑलराइट, दीज आर इंपॉर्टेंट. देन ये तो हम सब ने पढ़ा है भाई, चार्ल्स डार्विन, राइट. इवोल्यूशन की थ्योरीज में हमने पढ़ा था. अगेन देखो हेरिडिटी इवोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज हमारे लेक्चर में, है ना, आप लोग भी सोच रहे होंगे, राइट. सो चार्ल्स डार्विन, इनके बारे में हमने पढ़ा था. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने अपनी बुक 1859 में जो बनाई थी, याद है हम लोगों ने पढ़ा था. ये HMS बीगल जो अपनी शिप था, इनका कौन सा था, HMS बीगल से पूरा वोएज पे निकल गए थे वर्ल्ड के, है ना. फिर उन्होंने काफी सारी डिस्कवरीज की थी, है ना. एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया. तो आई होप यू गाइज मस्ट हैव रिटन दिस, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे लोग. नाउ चलो मूविंग अहेड. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कि किस तरीके से, किस तरीके से जो है नोमेनक्लेचर, यू नो, अलग अलग जो है किस तरीके. देखो अभी हमने क्या किया, चलो आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, अब उनका नाम देना इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट, ठीक है. नाम कैसे दिया जाएगा, हाउ वुड दी ऑर्गेनिजम्स बी नेम्ड. इतने सारे हैं, तो क्या हुआ कि हमारे जो कैरलस लिनेयस साहब हैं उनके पास आइडिया आया क्या कि यार चलो कुछ कुछ ऐसा सिस्टम निकालते हैं, है ना,
जिससे कि क्या है कि ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन तो हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उनका नाम देंगे तो हमें स्टडी के लिए ईजी होगा, इजंट इट, है ना। जैसे माई नेम इज गीतांजलि शर्मा, किसी का नाम कुछ और हो सकता है। सो सी वी गॉट 2 नेम्स, किसी किसी के 3 नेम्स होते हैं, अपने फादर का भी यूज करता है, बीच में कोई फादर ग्रैंडफादर का यूज करते हैं या फिर मदर का यूज करते हैं, इजंट इट। सो अगेन वो हमारी क्या हो जाती है बच्चों, आइडेंटिटी, राइट, वो क्या हो जाती है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है, इजंट इट। सिमिलरली जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते गए उनका नाम देते गए हम लोग, लेकिन उस समय ये चीज थी कि यार नाम कैसा देना है, सिंगल देना है या हाउ शुड वी गिव दी नेम्स, राइट। सो उस समय क्या था कि भाई हमारे कैरलस लिनेयस साहब जो हैं उनको आया आइडिया और उन्होंने प्रपोज कर दिया क्या, दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्या कर दिया बच्चों प्रपोज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो राइट इट डाउन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनेयस, इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनेयस। एंड देन उन्होंने बोला बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नेम करना है, क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नेम करना है तो द वर्ड इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, क्या, पहला होगा आपका जीनस एंड द सेकंड वुड बी योर स्पीशीज, राइट डाउन, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। सो इट वुड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है, जीनस और क्या, स्पीशीज। बच्चों जीनस जो है उसका क्या, जीनस जो है उसका फर्स्ट नेम जो है हमेशा कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा, ये उन्होंने रूल बनाया है ना। सो फर्स्ट लेटर वुड बी रिटन विद कैपिटल। सिमिलरली स्पीशीज जो है, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर, स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूं बच्चों आपको, कौन से का, मैंगो, एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो। भाई मैंगो तो एक जनरल नेम हो गया है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बोटानिकल नेम की तो दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो का बोटानिकल नेम इज मैंजीफेरा इंडिका, जैसे हमने हेडिट इवोल्यूशन में पी का देखा था, क्या, पाइसम सटाइवम। तो बच्चों पाइसम सटाइवम अगर मैं लिखूंगी तो पाइसम, ठीक है ना, एंड सटाइवम, राइट, पाइसम सटाइवम, है ना। तो देखो P यहाँ पे कैपिटल है और S हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मैंजीफेरा इंडिका है, राइट, मैंजीफेरा इज द जीनस, है ना, एंड इंडिका इज योर स्पीशीज। तो इंडिका में I इज योर स्मॉल एंड M इज द कैपिटल, सो दैट इज हाउ यू वुड बी राइटिंग दी नेम्स। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आज भी बच्चे लोग फॉलो होता है, राइट। We are naming organisms on the basis of this nomenclature only. Getting my point? Please write it down. It was proposed by Carolus Linnaeus. Again, an important question. Who proposed the binomial nomenclature? That is your Carolus Linnaeus. ठीक है? हाँ, अब बच्चों देखो मैंगो तो इसका जनरल एक इंग्लिश नेम हो गया, राइट, क्या हो गया, एक इंग्लिश नेम हो गया, इजंट इट। अब अगर मैं बात करूं ये नेम, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, मैंजीफेरा इंडिका, इतना टिपिकल सा जो नेम है, राइट। सो व्हाट इज बीइंग डन हियर इज बच्चों की जो नेम्स होते हैं, ये भी एक रूल बनाया गया कि ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज होगा उनके नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है जी, है ना। सो द नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स, राइट इट डाउन, ऑल राइट, है ना। और दूसरा ये बच्चों की इसका जो राइटिंग है, ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं, इट वुड ऑलवेज बी यूज्ड इन इटैलिक्स, ठीक है, कैसा, बाइनोमियल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड सेपरेटली अंडरलाइन, बाद में इनको अंडरलाइन भी किया जाता है। सो रूल्स कितने हो गए बच्चों, रूल्स कितने हो गए, देखो पहला तो ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नेम आउट करना है, सो व्हाट वी गोना डू इज दैट वी हैव टू गिव व्हाट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर इट इज, वुड बी गिवन इन 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वुड कंप्राइज ऑफ इट्स जीनस एंड द सेकंड वन वुड कंप्राइज ऑफ इट्स स्पीशीज, ओके। रूल नंबर 2, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट वुड बी इन कैपिटल एंड स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट वुड बी इन स्मॉल, राइट। एंड देन
तीसरा ये है कि it would be written in italics, running writing and would be separately underlined. So I hope you got my point. These were the 3 important rules of binomial nomenclature. Again adding to the important point as that Carolus Linnaeus ने ये propose किया था and आज भी यही system follow हो रहा है. So I hope you guys have done this, है ना? So we took the example of mango. The botanical name for mango would go as mango is extremely yummy, isn't it? Favorite fruit of almost all of us, right? मेरा तो बहुत ज़्यादा है. So that would be your Mangifera indica. Okay, Mangifera standing for the genus, indica representing the species. Then we took the example of Pisum sativum, right? है ना? Similarly बच्चों, we studied about touch me not plant, that is Mimosa pudica, right? Mimosa pudica. So can you see these names of these plants बच्चों? So अजीबो गरीब. Why? Because ये सारे के सारे derive होते हैं किससे? They all are derived from your जैसा मैंने यहाँ बताया Greek और Latin words, जैसे कि होता है आपका mimosa, then pudica, है ना? ठीक है, टच मी नॉट प्लांट. सो ऐसे जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स के नेम्स देखेंगे ना बच्चों, सबके सब जो है इसी तरीके से लिखे जाते हैं. चलो जी, मूविंग अहेड टू दी नाउ कम्स दी किंगडम सिस्टम्स. चलो भाई, हमने ये तो देख लिया दैट हाउ आर वी गोना क्लासिफाई देम. नाउ कम्स योर किंगडम सिस्टम्स. बच्चों क्या है ना कि जैसे जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी हमने जैसे ये बात देखी थी, क्या बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज लगाई, बहुत लोगों ने अपनी अपनी जो है अक्कल लगाई एंड अपने अपने अकॉर्डिंग जो है थ्योरीज प्रपोज किया, राइट? सो यहाँ भी ऐसा था, किसी ने क्या किया ना कि किसी ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, यानी कि 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन 2 किंगडम्स में आते हैं, राइट? स्टैंड करते हैं. किसी ने क्या किया, किसी ने एग्जाम्पल दे दिया किसका, समबडी गिव द एग्जाम्पल ऑफ लाइक किसी ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, किसी ने 4 दे दिया, किसी ने 5 दे दिया. तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड अभी जो किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑल राइट, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2 से. ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी 2 से, देन आई 3, देन 4 एंड देन 5. सो 5th किसने दिया था बच्चों? R.H. Whittaker, दैट इज रॉबर्ट एच विटेकर, दैट वील स्टडी लेटर. बट वो क्लासिफिकेशन सिस्टम आज तक का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम रियली गुड रीजंस, लेट अस जस्ट सी. सो देयर वी गो, द वेरी फर्स्ट वन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, किसने दिया? कैरलस लिनियस इन 1758 इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी. राइट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. इट वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस 1758 में इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी. बच्चों इन्होंने क्या किया था ना, ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 बहुत बड़े बड़े किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया. क्या? प्लांटे एंड एनिमेलिया. ऑल राइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बस काम खत्म, और कोई कुछ नहीं. उनको बस ये था कि हाँ कुछ प्लांट्स होते हैं एंड आधे एनिमल्स होते हैं. ठीक है जी, ऑल राइट. अब देखो प्लांटे में क्या था, इंक्लूड्स ऑल दी प्लांट्स, जैसे बैक्टीरियाज को भी, एल्गी, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइट? मतलब ठीक है, फर्न्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा, ये समझ में आता है. बट देन बैक्टीरिया, एल्गी, सब कुछ इन्होंने क्या किया, किस में डाल दिया? वो भी प्लांट्स में इंक्लूड कर दिया, है ना? ठीक है, एनिमेलिया में ही इंक्लूडेड ऑल दी एनिमल्स. उनके अकॉर्डिंग भैया बैक्टीरिया वगैरह जो थे वो भी प्लांट्स थे, है ना? यहाँ पे प्रोटोजोन्स, हाइड्रा, जेलीफिश, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा सब किस में आ गए? एनिमेलिया में. ठीक है, ऑल राइट. तो बच्चों इन्होंने 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. अब इसका ड्रॉबैक क्या था बच्चों? देखो हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वायरस. नाउ वी टेक वायरस, राइट? वायरस जो होते हैं बच्चों लिविंग नॉन लिविंग की बाउंड्री पे होते हैं. ठीक है, लाइक इफ आई से, देन इफ आई टॉक अबाउट यूग्लिना. ओके, यूग्लिना एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल के बीच में फ्लक्चुएट करता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है उसको कहाँ रखा जाए. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ना प्लांट में फिट हो रहे हैं ना एनिमल्स को, तो जो बॉर्डर लाइन पे थे तो उनको कहाँ रखा जाए. तो ये इस किंगडम क्लासिफिकेशन का, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है ड्रॉबैक बन गया. गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना वायरस डिड नॉट फिट स्ट्रिक्टली अंडर आइदर प्लांट और एनिमल किंगडम. तो भाई इनको कहाँ रखा जाए, इसलिए ये किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया? डिस्कार्ड. ठीक है जी. फिर आया अब भाई हमारे अर्नस्ट हैकल साहब. कौन बच्चों? द नेम
of these people, they are very important, like who gave the 2 kingdom classification, who gave 3 kingdom classification, who gave the binomial nomenclature, who gave a 4 kingdom classification, 5 kingdom classification में क्या था, etc etc etc. all right, this is important. So 3 kingdom classification was given by Ernst Haeckel. all right, बच्चों Ernst Haeckel ने क्या किया था, सिर्फ एक kingdom और add कर दिया, कौन सा, Protista. all right, so what he did was he added Protista as the थर्ड किंगडम, है ना. उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम नहीं होता है, एक और थर्ड किंगडम भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, दैट इज योर प्रोटिस्टा. ऑल राइट, अगेन ये भी जो है, चलो इसको मान्यता मिल गई लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फिट तो हो रहे थे, लेकिन वही बात है, कुछ कुछ फीका लग रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कमी है, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इट कुड बी कंसिडर्ड समहाउ बट नॉट एब्सोल्युटली, बिकॉज सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है जी. चलो फिर आया आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका भी नाम अवश्य बहुत ज्यादा जरूरी, किसने दिया, कोपलैंड ने, ठीक है जी, लिखो. The 4 kingdom classification was given by Copeland. अब देखो, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा प्रपोज किया, कोपलैंड ने क्या किया था, कोपलैंड ने किया मोनेरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर माइकोटा, ठीक है जी, कौन सा, मोनेरा माइकोटा, ये इन्होंने जो है 4th किंगडम प्रपोज कर दिया था, ठीक है. तो किस तरीके से एडिशन हो रहा है देख रहे हो बच्चों आप लोग, पहले प्लांट एनिमल, राइट, देन उसके बाद प्रोटिस्टा ऐड हुआ, फिर मोनेरा ऐड हो गया, है ना, 4th किंगडम में. बच्चों इसमें क्या था कि मोनेरा में वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, वी नो वेरी वेल व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, they are developed, right, they have got membrane bound cell organelles and nucleus. This is very very basic difference between prokaryote and eukaryotes, right. जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी. ऑलराइट, देन इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी इन्होंने ऐड कर दिया भाई, जैसे राइजोबियम है, व्हाट, दे आर फॉर प्रोकैरियोट्स, सो दिस ग्रुप वाज स्ट्रिक्टली फॉर प्रोकैरियोट्स, मोनेरा. ऑलराइट, सो भाई ऑफ कोर्स वापस से कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि प्रॉपर मतलब क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना. सो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, राइट. अब जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, दिस इज अगेन अ फैक्ट, कौन सा, दैट बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, दैट इज म्यूरिन, इसको लिख लो इसको. देन बीजीए परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज ऑफ which structure, that is your heterocyst. heterocyst की वजह से BGA, that is your blue green algae, ठीक है. ब्लू ग्रीन algae बच्चों क्या होता है आपका, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae बेसिकली बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है. सो performs nitrogen fixation because of heterocyst and bacterial cell wall is made up of peptidoglycans, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर म्यूरिन, ठीक है. अब आता है द मोस्ट एक्सेप्टेड विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज इट, दैट इज योर 5 kingdom classification, very 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 important, and that is, it was given by Robert H. Whittaker or R.H. Whittaker in 1969. The dates are important, the names are very 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 important. प्लीज इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है बच्चे लोग, बिकॉज ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना, थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं. अगर आपको बच्चों ये थ्योरी पता है ना अच्छे से, देन व्हाट यू विल बी एबल टू डू इज, स्टोरी बनाने में तो वैसे ही माहिर हो सबके सब, है ना, हाँ, खुराफाती दिमाग, सो यू कैन आराम से जो आप स्टोरीज यहाँ बना सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट, सो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट एच विटेकर इन 1969. ओके, चलो मूविंग अहेड. अब बच्चों देखो, हमने क्या किया था ना, हमने इनिशियली जो है ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना था, है ना. एक तो भाई प्रिमिटिव है या फिर डेवलप्ड है, यानी कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, राइट. बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्लेक्सिटी कैसी है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, देन व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. एंड if you remember properly, then we discussed this in the previous lecture, isn't it? So I hope you guys remember. And then
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका क्लासिफिकेशन हुआ किस में? एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। सो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ प्लांटे एनिमेलिया या फिर सिर्फ प्लांटे एनिमेलिया मोनेरा या फिर प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा ना करके फाइनली रॉबर्ट एच विटेकर ने जो है आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कितने भागों में बांटा, कितने ग्रुप्स में या फिर किंगडम्स में बांटा, राइट? एंड दैट वाज योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, right guys, है ना? And what was the basis of his classification? ये please again this is important, ठीक है? इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे and please do write it down, ठीक है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो देखो, इस तरीके से बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिवाइड होते हैं। प्लीज इस फ्लो चार्ट पे अच्छे से फोकस करो, अगर ये आता है थ्योरी वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट, अब देखो बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स, पहले देखो किस तरीके से बच्चों हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। देखो सबसे पहला जो हमने देखा था वो था दैट वाज योर व्हाट, योर लाइक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना? प्रिमिटिव है या फिर डेवलप्ड है। कैन यू सी दिस हियर? देखो यहाँ पे हमने अभी देखा है, राइट? सेल स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे क्या ये पॉइंट हमें बता रहा है सेल स्ट्रक्चर के बारे में? ये पॉइंट हमें बता रहा है सबसे पहले, देखो सेल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर डिवाइड किए गए किसमें? आपके प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, है ना? प्रोकैरियोट्स में आए आपके मोनेरा, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में क्या है बच्चों? मोनेरा। अब उसके बाद यूकैरियोट्स में आए आपके यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो यहाँ पे डिवीजन हुआ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है? एंड फाइनली यहाँ पे हुआ आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, राइट? तो इस तरीके से वो बच्चों सिस्टमैटिकली डिवीजन करते चले गए एंड इस तरीके से उनको ऑर्गेनिजम्स मिलते चले गए। सो इफ यू कैन सी हियर यूकैरियोट्स में, देन अगेन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में क्या आए बच्चों? प्रोटिस्टा। कैन यू सी दिस हियर? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आए आपके प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर में, अगेन मल्टीसेलुलर में ऑब्वियसली बात है यूकैरियोट है, डेवलप्ड है ना? और मल्टीसेलुलर है तो विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो जो विदाउट सेल वॉल यानी कि जैसे कि हम एंड बाकी एनिमल्स, तो वो आए एनिमेलिया के अंडर। एंड विद सेल वॉल जो आए, ऑब्वियसली बात है अगर सेल वॉल है बच्चों, वी ऑल नो दैट प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल, राइट? सो दे अगेन डिवाइडेड, सो they again divided on the basis of photosynthesis, ki if they can perform photosynthesis which have cell wall, they would be your plantae, and if they cannot perform photosynthesis but they have cell wall, then it would be under your fungi. किसी ने नहीं बनाया हो तो प्लीज इसको बना लीजिए, because this would be very 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 helpful. Easy है, right? है ना? ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है जी? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, राइट? प्रोकैरियोट वुड बी योर, सो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट वुड बी योर, यानी कि प्रोकैरियोट मतलब कि बच्चों प्रिमिटिव, राइट? लेस डेवलप्ड, है ना? प्रिमिटिव और लेस डेवलप्ड। और अगर हम इसको पिछली वाली थ्योरी से रिलेट करें तो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत जल्दी इस अर्थ पे आए थे, पहले आए थे, है ना? देन योर यूकैरियोट्स that would consist of your unicellular eukaryotes being your protista, यानी कि ये यूनिसेलुलर हैं लेकिन डेवलप्ड हैं, है ना? देन मल्टीसेलुलर में जिनमें सेल वॉल है और जिनमें सेल वॉल नहीं है, जिनमें नहीं है वो एनिमेलिया आ गए, यानी कि एनिमेलिया क्या हो गए बच्चों? दे आर योर मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया आर योर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट? है ना? प्रोटिस्टा आर योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना? सिमिलरली प्लांटे जो है आपका, प्लांटे क्या है आपका? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगाई इज योर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विच
कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट हैज अ सेल वॉल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन की इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रॉ दीज, ये पूरा लिख लो एंड आई होप इट्स डन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, चलो जी, मूविंग अहेड। सी, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों दैट मोनेरा जो है, विच वन, मोनेरा वी स्टडीड, है ना। यहाँ पे देखो मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा था दैट इट इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज कि मोनेरा को हमारे भाई वापस से जो है डिवीजन कर दिया गया। क्या, कार्ल वोस नाम के, कार्ल वोस जो थे उन्होंने मोनेरा को फर्दर स्प्लिट किया इन आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। राइट इट डाउन। So Monera was further divided into your Archaebacteria and Eubacteria by Carl Woese. All right. Archaebacteria and Eubacteria की differences के लिए उन दोनों में similarities क्या होती हैं and similarities क्या होती हैं and dissimilarities क्या होती हैं, ये सब यहाँ ऑलरेडी इस टेबल में लिखा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नथिंग मच टू बी डिस्कस बट इन केस इफ यू वांट टू नो, दोनों की दोनों प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट यू नो उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो नो न्यूक्लियस, सिंगल सेल्ड राइबोसोम, सिंगल सेल्ड होते हैं राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। नाउ यू बैक्टीरिया की खासियत, पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल्स, ओके, यानी कि सेल वॉल है इनमें। ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी। आर्केबैक्टीरिया नो पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल्स, लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, यानी कि ये चीजें जो है इनमें सर्वाइव आराम से कर सकते हैं ये। ठीक है, थर्मोफाइल्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में, राइट, हैलोजेंस में, मीथेन में, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, कार्ल वोस ने। ठीक है जी, ओके। सो बच्चों अभी क्या है ना, अभी तक हमने सिर्फ एक ऊपर की बात पढ़ी, हमने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखी, उसमें इंपॉर्टेंस रखता है क्या, किसने कौन सा किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, तो उनकी नेम्स इंपॉर्टेंट है। देन मोनेरा का डिवीजन किसने किया, कार्ल वोस ने किया, किसमें किया, आर्केबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, लाइक दैट। ओके, सो द नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, फॉर योर ओलंपियाड्स एंड एनटीएससी और व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ऑलराइट, सो प्लीज डू टेक अ गुड केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम उस किंगडम को स्टडी करेंगे। ऑल राइट, सो हियर वी गोना टेक व्हाट, वी गोना टेक फॉर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड देन एनिमेलिया एंड देन इन द लास्ट वुड बी टेकिंग योर प्लांटे। ओके, ठीक है जी। तो चलो अब देखो, अगर मैं मोनेरा की बात करूं, हमने पढ़ा है बच्चों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, वी नो दैट, राइट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स क्यों, जेनेटिक मटेरियल इनका साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, और किस फॉर्म में होता है बच्चों, न्यूक्लियोइड फॉर्म में। उस जेनेटिक मटेरियल को जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड। व्हाई, सिंस दे आर प्रोकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, राइट, प्रिमिटिव, है ना। So these are organisms which are present, see they are found in filaments and colonies but the cells are independent. Okay, cells independently work कर रहे हैं लेकिन present होते हैं colonies, groups में मिलते हैं, filaments में या तो या फिर colonies में। All right, so I hope it's done. चलो जी, moving ahead. Mode of nutrition इनका दोनों हो सकता है, या तो autotrophic या फिर heterotrophic, है ना। So वो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उसका एग्जाम्पल दिया है BGA, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। उसमें क्या क्या आता है बच्चों, एनाबेना, नॉस्टॉक। सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे मेक देयर ओन फूड। ये काई देख रहे हो आप इमेज में इसके नीचे, राइट, है ना। हेटरोट्रॉफिक जो कि डिपेंडेंट होंगे, विच यू कैन से विच प्रोटिस्ट्स और विच मोनेरेंस, सॉरी, are heterotrophic, they are mycoplasmas and most bacteria। ठीक है, ये जो इमेज है ये है E. coli का and this is your mycoplasma। so you can take the examples here। कौन कौन से आते हैं बच्चों, मोनेरेंस में क्या क्या आता है, mycoplasmas and mostly bacteria like Vibrio cholerae,
Clostridium botulinum and E. coli, that is your Escherichia coli, and autotrophic would contain BGA और साइनोबैक्टीरिया. पूरा का पूरा बच्चों थ्योरी ही है इसमें, राइट? इसमें आपको सारी चीज़ें जो है लर्न ही करनी है, लेकिन ये है जो जो इंपॉर्टेंस रखता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे ये किंगडम्स में डिवाइडेड हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, राइट? थोड़ा सा बोरिंग साइड आ जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली, बिकॉज मेरे साथ भी सेम यही था, बट देन अगेन हमें पास आउट करना है, एग्जामिनेशन, स्कूल एंड एवरीथिंग. We need to have a very good knowledge about everything, be it boring, be it whatever it is. हर चीज़ का अपना वेटेज है, all right? So please stay focused. ठीक है जी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. फिर आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ चुके हैं. They are what? They are unicellular eukaryotes. क्या है बच्चों? Unicellular eukaryotes. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से क्या होते हैं बच्चों? सी इफ यू हैव पेड अटेंशन ओवर दैट फ्लो चार्ट, आपको ये आराम से आएगा, समझ में आएगा, ठीक है? व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स? इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे वुड बी योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स पता है हमें, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. अब बच्चों देखो सेल वॉल, इसमें भी देखो कुछ कुछ होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना. प्रेजेंट इन मोस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स एंड एब्सेंट इन मोस्ट प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं भाई, जो जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसमें सेल वॉल होता है. तो प्रोटिस्टा ग्रुप में भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर फोटोसिंथेटिक, एंड जो नहीं है उनको प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट बोला जाता है. चलो मूविंग अहेड. मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रोटिस्ट्स एग्जिबिट करते हैं, दे आर योर algae and diatoms. प्लीज राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीधा पूछ सकते हैं एग्जामिनेशंस में विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो अगर ये भी ऑप्शंस में आते हैं यू विल बी एबल टू नो देम, राइट? एंड देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू एग्जैक्टली किस ग्रुप में ये फॉल करते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, ऑल राइट? सो प्लीज राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स, योर algae and diatom. हीटोट्रॉफिक में आएंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, राइट? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में क्या क्या आते हैं बच्चों? अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम. ठीक है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम. ओके, देखो फिर उसके बाद इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ठीक है ना भाई? डेवलप्ड हैं तो क्या है, आराम से इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, बिकॉज वी सी दैट दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. सो व्हाट? दे आर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स. तो इनके पास देखो लोकोमोटरी ऑर्गन्स कितने टाइप के? दे कैन हैव सीलिया, दे कैन हैव फ्लैजिला एंड दे कैन हैव स्यूडोपोडिया, राइट? सो सीलिया प्रेजेंट होगा पैरामीशियम में, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. पैरामीशियम का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सीलिया विच इज अ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, है ना? युगलीना, अगेन सी बच्चों वहां पे कंफ्यूजन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्योंकि युगलीना ना तो प्लांट्स में रख सकते हो ना एनिमल्स में रख सकते हो, तो इनको कहाँ रखा? प्रोटिस्टा में. ठीक है ना? तो युगलीना का क्या होता है बच्चों? लोकोमोटरी ऑर्गन, दैट इज योर फ्लैजिला, है ना? अ सिंगल फ्लैजिलम. Then similarly amoeba is also your, अमीबा का नाम तो बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, है ना? देखो ये इस तरीके के सूडोपोडिया, इसके प्रोजेक्शंस. व्हाट आर सूडोपोडिया बच्चे लोग? दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो कि इसको न्यूट्रिशन ग्रैब करने में, यानी कि फूड को एनगल्फ करने में एंड एज वेल एज लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है. ठीक है, इजी है ना? चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है लेकिन एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है, जैसे कि किसमें? क्लेमाइडोमोनास में, क्लोरेला में, डायटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में. यानी कि बच्चों क्या होता है? एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट बट एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट. प्लीज नोट इट डाउन. प्रोटोजोआ में कहाँ कहाँ होता है ये? अमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलीना, पैरामीशियम. ठीक है बच्चों, यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एडवर्स कंडीशंस, नॉट नॉर्मली दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ठीक है, लेकिन कभी सिचुएशंस फेवर नहीं करती तो दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वहां पे द एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट. ओके,
एंड राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स। कहाँ कहाँ होता है? यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, डायटम्स डाइनोफ्लैजेलेट्स, एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स में अमीबा, प्लास्मोडियम यूग्लिना, पैरामीशियम। डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स हमने देखा अभी, दीज आर योर ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, राइट? So I hope this is understood. Easy है. It's more about a theory बच्चों. I can understand. किसी किसी को boring भी लगे तो it's okay, no problem. लेकिन क्या करें भाई, पढ़ना मजबूरी है हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते है ना. चलो, so this was your आज का lecture, है ना. तो बच्चों कुछ नहीं है, हमें वापस से जो है सारी चीज़ों को एज यूजुअल रखना तो पड़ेगा ही, ठीक है. सो बाकी मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है. मस्ट नो द नेम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई ऑलरेडी मेंशन्ड इट देयर. ये नोट्स अगेन मैं बता रही हूँ, दीज आर माई ओन नोट्स, ऑलराइट. A little bit simplified for you guys so that you know आपको easily समझ में आएगा. कुछ terms and technologies, not technologies, कुछ terms ऐसी हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते. प्लीज़ उसको पढ़ो and help yourself. Even I can't help in it because वो तो रटना ही है यार. Years रटने तो रटने हैं, है ना. टेक्सोनोमी या सिस्टमैटिक्स क्या होता है, रटना है तो रटना है, कुछ नहीं कर सकते, है ना. ठीक है. बट ये है कि इसके बाद जब आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मटेरियल रीड आउट करेंगे प्रॉपरली अपनी थ्योरी को और थोड़ा एनहांस करने के लिए, दिस वुड रियली हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. ऑल राइट, लिटिल बिट कोरिलेशन है दोनों का, बट लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाइड. सो आज का हमारा लेक्चर खत्म, ठीक है. सो आई रियली होप दैट यू लाइक द लेक्चर गाइज, एंड इफ यू डिड फॉर व्हाटएवर रीजन, हो सकता है आपको पैरामीशियम का डायग्राम अच्छा लगा हो, या फिर मैंने जैसे पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है. बायोलॉजी आप इंजॉय कर रहे हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यार ये चैप्टर बहुत अजीबो गरीब है थोड़ा, आई अंडरस्टैंड. सो वो व्हाटएवर रीजन इट इज, यू कैन हिट द लाइक बटन इफ यू वांट टू. ओके, मैं तो बोलती हूँ यार कि अच्छा लगे तो प्लीज़ करना, ठीक है. सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है. एंड यू वांट रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी. एंड ऑल्सो ये जो बेल आइकन है, आई होप, ओ वाह उंगली लगाते ही गायब हो गया था अभी, हाँ, तो इसको हिट कर देना. वेरी नॉटी, ओके. सो इसको हिट कर देना, ठीक है. एंड येस गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, thank you so much for being with me because it's because of you guys' energy that I'm reciprocating it equally. Okay, अपना ध्यान रखो. Loads of love to you all and I'll see you later. Bye, take care.